शोहर ने अपनी बीवी जुए में हार गया। अपनी बीवी को जो है उसने अपने दोस्त के साथ भेजने के लिए अपनी बीवी से कहा कि मेरे दोस्त के साथ जाओ, जिसके आगे वो अपनी बीवी हारा। बीवी ने जाने से इनकार किया और इस बुनियाद पर शोहर ने अपनी बीवी को डंडे मारकर जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे जो बाबा है ना वो नशा करते थे, कहते थे नशा ला के दो मुझे जहाँ से मर्जी। मेरी मम्मा एक दफ़ा गई, मेरे बाबा ने बोला जाओ लेके आओ, तो मेरी मम्मा गई, मेरे बाबा को नहीं थे देते, वो कहते थे मुखबरी करवा दोगे हमें। कहता आप इधर ना आया करो, इधर लड़के होते हैं अच्छी नहीं लगती, आप जवान हो ऐसे हो ऐसे हो। तो मेरी मामा ने इसका नंबर ले लिया। उसके बाद शुरू हो गया, जब मर्जी मार लेता था, जब मर्जी। फिर इसने ना मेरी मामा को बोला कि मेरा नशा बेचा कर। मेरी मामा कहती क्यों, मैं मेरे छोटे मीरबाज कहता है आपकी मम्मा? ये नहीं ना पता। सब आप तो चुप कर जाना, आप हर बात को डिफेंड कर रहे हैं, आप तो चुप कर जाना। ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ। क्यों किया? ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੱਸਾਂ। ਆਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆ ਤੇ ਸੁਬਹ ਛੱਡ ਸੁਬਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਛੱਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੋ ਹੱਥ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तो और किसी ना भी खराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना शादरा की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश है, जहां पर जो है बताया ये जा रहा है कि शोहर ने अपनी बीवी जुए में हार गया और जुए में हारने के बाद अपनी बीवी को जो है उसने अपने दोस्त के साथ भेजने के लिए अपनी बीवी से कहा कि मेरे दोस्त के साथ जाओ, जिसके आगे वो अपनी बीवी हारा। बीवी ने जाने से इनकार किया और इस बुनियाद पर शोहर ने अपनी बीवी को डंडे मारकर जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सारी कहानी जानते हैं फैमिली की ज़ुबानी कि दर हकीकत क्या मामला है, कि क्या वाकई ही शोहर जो है अपनी बीवी को जुए में हार गया था और उसके बाद अपनी बीवी को जब उसने भेजना चाहा और उसके बाद बीवी ने इनकार किया तो फिर उस पर तशद्दुद किया। सारी कहानी क्या है जानते हैं, हकाइक और फैमिली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਅੱਛਾ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਲ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਬੀਅਤ? ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਰੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਾਸ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜੂਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਰਬਾਜ਼? ਨਹੀਂ, ਡਿਫੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕੀ? ਬੇਟੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? मोटरसाइकिल तो जिससे भी सामने नहीं पता। बेटा बात सुनना नाज़रीन, ये जो मकतूल है ये उसकी बेटी है। बेटा बात सुना, इधर आ जाए, इधर आ जाए।
अच्छा बेटा इधर तो आए ना आप इधर तो आ जाए, बेटी हैं हमारी, इधर आ जाए, कोई मसला नहीं। बेटा आप इधर आ जाए, नहीं आता, इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा बेटा कोई हमारी बेटी हैं आप, अल्लाह आपसे जो है अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आप बेटी हैं हमारी। बेटा ये क्या नाम है आपका? मुस्कान। अच्छा मुस्कान। हाँ जी। कितने बहन भाई हैं आप? 6 बहन भाई। 6 बहन हाँ जी। कितनी सिस्टर है? 3। 3 सिस्टर है जी। और 3 भाई हैं आप। जी। क्या मामला हुआ था बेटा? मामला ये हुआ है बेटा कि सच बताना है, देखिए झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। सच बताना है आपने मेरा बेटा, क्योंकि देखिए अल्लाह के यहाँ भी हमने हाजिर होना है। जो सच बात है ना बेटा आपने वो बताना है, हाँ? सच। झूठ के पाँव नहीं होते और सच सच ही होता है। आप बताएं जरा मुझे। सच ये है कि ना मेरी माँ ने, मेरे जो बाबा है ना वो नशा करते थे जी। तो मेरी मामा को मारते नहीं थे, कहते थे नशा ला के दो मुझे जान से मर्जी। तब पाउडर पीते थे, अब नहीं पीते, अब तो छोड़ गए ना, अब थोड़े से सही हो गए, बेहतर हो गए। तो मेरी मामा एक दफ़ा गई, मेरे बाबा ने बोला जाओ लेके आओ, तो मेरी मामा गई, मेरे बाबा को नहीं थे देते वो कहते थे मुखबरी करवा दोगे हमने। तो वो उसके बाद मेरी मामा को वो वहाँ मिल गया, कहता था क्या नाम था इसका? मीरबाज खान। और कहता था आपकी मामा आपके वालिद के लिए नशा लेने के लिए जाती? एक दफ़ा गई थी, उसके बाद नहीं गई। तो कहता आप इधर ना आया करो, इधर लड़के होते हैं, अच्छी नहीं लगती, आप जवान हो, ऐसे हो वैसे। तो मेरी मामा ने उसका नंबर ले लिया। उसके बाद फिर बातचीत होना शुरू हो गई। हाँ। ठीक है। उसके बाद के वो हमारे घर आने जाने शुरू हो गया। फिर उसने पहले दिन जब रमज़ान में मम्मा को मारा ना, तो मेरी मामा ने कुछ नहीं बोला, इस बात का उसने फ़ायदा उठा के। कितनी देर से आपके घर पे आ जा रहा था? 7-8 माह हो गए। 7-8 माह जी। फिर? उसके बाद फिर मेरी मामा ने उसको कुछ नहीं बोला, ना कोई दरख्वास्त या कुछ पर्चा वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मामा ने उसको कुछ नहीं बोला, तो उसका ना वो ज़्यादा फ्री होना शुरू हो गया, जब मर्जी मार लेता था, जब मर्जी। फिर उसने ना मेरी मामा को बोला कि मेरा नशा बेचा कर। मेरी मामा कहती क्यों? मेरे छोटे मीरबाज कहता है आपकी मामा को? जी कहते, मेरी मामा कहती मेरे नशा बेचा करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्यों बेचूं? तो अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चे तो ये गलियों में रुल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे वे। तो उसके बाद फिर उसने मेरी मम्मा को मारा। तो फिर मेरे पापा ने आके मेरे घर, हम भी नहीं थे, हम खाला की तरफ गए थे, हम कोई भी घर नहीं था। तो मेरे पापा ने आके रोका, तो मेरे पापा को भी उसने मारा। उसके बाद फिर इसका बाजू तोड़ा, मामा का बाजू तोड़ के उसके बाद फिर घर आए हैं। मैं घर नहीं थी, मुझे भी मेरे भाई ने ही बताया है ना। घर आए हैं तो फिर उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनके पेट में और ये गुर्दों में पेन होने शुरू होगी। उसके बाद मेरी मम्मा को अस्पताल लेके गए, मेरा भाई और मेरा वो मीरबाज खान लेके गए। उसके बाद लेके तो वो लेके गए, आगे बेटा। तो उसके बाद नहीं तो ये मारा किसने है, क्यों मारा है, वजह क्या बनी? कि वो उस दिन क्या मामला हुआ? मेरी मामा को बोलता था नशा बेचो, तो वो कहता था नहीं बेचनी, इस वजह से उसने मारा। तो उसका ये उसको क्या पता था डेथ हो जानी है मारने से, वो पहले भी मारता रहता था। उसने इस दफ़ा उसने ज़्यादा ही मारा कुछ, तो पता ही नहीं चला, अस्पताल ले गए। बातें की जा रही हैं कि जुए में हार गया, फिर आपके वालिद को। ये सब गलत है। कल न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने हमें बोला मरियम नवाज से हम ये आपको ये ले देंगे, वो ले देंगे, प्लाट्स ले देंगे, पैसे ले देंगे, मकान ले देंगे, घर ले देंगे। आपने ऐसे बोला। मेरी बहन कहती क्यों? मेरे पापा ने जब कुछ किया नहीं था। फिर मेरी कज़न थी, मेरी कज़न को उन्होंने पता नहीं क्या बोला, क्या नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बोल तो मरियम नवाज आपको प्लाट दे देगी, मम्मा आपकी फोत हो गई हैं। तो अच्छा ये मीरबाज ने आपकी वालदा को इसलिए कत्ल किया है कि वो आपकी वालदा को मजबूर करता था नशा बेचने पर और नाजायज़ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर करता था? नहीं कहता था नशा बेचो। मेरी मामा कहती थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अगर पकड़ी गई तो उनका कौन पीछे है, ना मेरे बाबा काम करते हैं। तो मेरी मामा कहती मेरे बच्चे तो रुल जाएंगे, तो इस वजह से उसने मारा, तो डेथ हो गई उनकी। तो ये घर पे आके तशद्दुद किया इसने? इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, किधर मारा है इसने? ये नहीं ना पता। सब आप तो चुप कर जाए ना, आप हर बात को डिफेंड कर रहे हैं, आप तो चुप कर रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें क्यों डिफेंड कर रहे वो हैं? यहाँ पे थी नहीं, ठीक है, आप उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? बात समझ नहीं, आप मीरबाज को क्यों डिफेंड नहीं कर रहा है।
यहाँ से रोज लेके जाते थे, बाहर जाते थे। अच्छा। हाँ जी, जो बात है असल में वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मना नहीं किया उसको कि वो इस घर में आता था बच्चों को आके उसी ने मकान लेके दिया, उस वो इनके साथ ही रहता था। जी जी भाई। भाईजान उसी ने मकान लेके दिया इनको। ये इससे पहले भी जहाँ पे रहे हैं ना, इनके साथ वो रहता रहा है। अच्छा चले जी नाज़रीन के, मैं भाई से आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं भाई से पहले बात करता हूँ, पहले इन्होंने निकल जाना है ना, मैं बात कर लूँ। हाज़र साहब मेरी इनसे बात कर लेने दें, 1 मिनट में उससे बात करता हूँ। आप इधर, मैं कर रहा हूँ जनाब, कर रहा हूँ, सब्र कर लें आप, सब्र कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बशीर अहमद अच्छा साहब। बशीर अहमद, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने अपनी बीवी को जुए में आप हार गए और आपका दोस्त लेने के लिए आया और आपने अपनी बीवी से कहा कि जाओ जिसके साथ, तो उसने जाने से इनकार किया, आपने तशद्दुद करके अपनी बीवी को मार दिया। ये बात हकीकत है? बड़ी गल है यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਝੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं कहा ये जा रहा है ना, खबर की है, मैं आपसे आप तरदीद कर दें, ऐसा है कि नहीं है? नहीं ये सब झूठ है, झूठ है। सब झूठ है। की कहानी है, असल कहानी की? ਅਸਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ। क्यों किया है? ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ। जालम सी क्यों जालम बन गया, की वजह सी? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੱਸਾਂ। ਆਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਬਹ ਛੱਡ ਸੁਬਾ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਛੱਡ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ। ਸੀ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਟਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ 2 ਹੱਥ, ਮੇਰਾ 1 ਹੱਥ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਨ? ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਪਰਚਾ, ਵੇ ਕਿਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨੂੰ ਕਲਾ ਤੇ ਪਰਚਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਲਾ ਕਰਾਓ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਣਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਵੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਨੂਸ ਐ ਫੋਈਆ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਜਾਗੋ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਾਗੋ ਆਈਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਈਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਰਸਾ ਹੈ ਕੁੱਟਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾੜਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये हमसे भी उसके बारे में झूठ बोलते रहे हैं। आपसे झूठ बोल? हमने इनसे पूछा भाई ये कौन है, इसने कहा ये हमारा भांजा है, हम जहाँ भी रहते हैं ये हमारे साथ रहता है, नेट केबल का ये काम करता है। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਟ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ। तुसी कहते रहो जी साडा भांजा है, अच्छा ये कहते थे मेरा भांजा। ये इनको अभी महीना भी हमारे पास आया नहीं हुआ। हमारे पास सारी फैमिलीज हैं, ठीक है। हमारी खुद की बहन इधर रहती है, उसका हस्बैंड नहीं है। ठीक है। हम इधर उन लोगों को रखते हैं जो इज्जत के साथ रहें। जब ये आए हैं 2-4 दिन को देखा है, इनके जो है और रवैये देखे हैं, इनको हमने जवाब दे दिया है। पिछली 8 तारीख को आए हैं ये, इस 5 को इन्होंने मकान खाली कर देना था। आज मेरे ख्याल है 3 है, ठीक है ना, 2 दिन रह गए, इन्होंने मकान खाली कर देना इन रवैयों की वजह से। उस लड़के के आने जाने की वजह से उसी ने वेरिफिकेशन करवाई है। इनके पास तो किसी के पास ID कार्ड भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है इनके पास। वेरिफिकेशन भी उसने करवाई है, रेंट वो दे रहा था, ठीक है ना। इसने कहा जी आपने इससे पूछा, इन्होंने कहा मेरा वो कौन है, इन्होंने कहा जी मेरा भांजा है, ये हमारे साथ ही रहता है। और वाकई ये बात ठीक है, 2-3 जगहों पे ये रहे हैं, वो इनके साथ ही रहता हमें है। पता चल रहा है कि डेड बॉडी बाइट से ले बाइट से हॉस्पिटल से लेके आए इधर से, परसों 6 बजे इधर से अच्छे भी लेके गए हैं उसको। इसका बेटा और वो लड़का
मीरबाज खान जो है वो इसको अच्छा भला औरत को लेके गए हैं 5-6 बजे, और अगले दिन कल सुबह 6 बजे लेके आए हैं डेड बॉडी में हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में। तशद्दुद यहाँ पे कह रहा करता रहा, ये तो झूठ बोल रहा हमें इस बात का नहीं पता, ना ही कोई किराएदार कहता है। हम तो चलो नीचे हैं, है। मारे हो तो आवाज तो मैं वही कह रहा हूँ, हमें नहीं पता, हमें नीचे ना पता चले तो किराएदार तो बताइए, साथ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। 1-2 दफा झगड़ा इनका हुआ है। अभी अभी पता नहीं चल रहा कि कातिल कौन है। इनके बीच में ये गोलमाल चल रहा है। लेकिन राज साहब देखिए, आप बुजुर्ग हैं हमारे, मैं मेरी बात सुनने की बात बुरी लगी हो तो मैं फिर भी आपसे जो है ना ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांग रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं आप। अच्छा मुझे ये बता दें, गैर महरम को घर में एंटर करना चाहिए? ये कितनी बड़ी ज्यादती ये करता है। मैं हर वक्त यहाँ दुकान परचून की दुकान है मेरी, घर भी मेरा है। अगर कोई भी कर रहा है, ये कह रहा मैं ढूंढ रहा हूँ, उनसे नहीं कुछ करा गया। ये नीचे जाकर था मेरी बीवी को मार रहा है। एक आवाज़ देता मोहल्ले से, यहाँ ऊपर से आवाज़ देता है, तो आज इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से आप यहाँ के मालिक मकान हैं? जी जी। अच्छा, ये मालिक मकान का भी मौक़िफ़ हमने जो है यानी कि वो सुना है और आपने देखा भी है किस तरीके से भाई ने बताया कि ये इनके घर पर ये जो मीरबाज खान है, ये अरसा दराज से इनके घर पर आना जाना था इसका, और इसी ने जो है ये घर इनको लेके दिया था। अगर मैं आपको इनके घर के हालात दिखाऊं तो ये आप घर के हालात देख सकते हैं इनके। ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये चंद बर्तन पड़े हुए हैं, और 6 बच्चे हैं इस शख्स के। और इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बंदा जो है अपनी बीवी जुए में हार गया। हालांकि वो इस चीज़ से डिनाई कर रहा है इस चीज़ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसका कहना ये है कि ये जो मीरबाज खान है ये मेरे घर पर आता था और आके मुझे भी मारता था, तशद्दुद करता था, जो कि बाअसर शख्स था और नशा बेचता था, और वो आके मेरे घर पर मुझ पर भी तशद्दुद करता था, मेरी बीवी पर भी तशद्दुद करता था, और मेरे बच्चों में खौफ व हरास फैलाता था, वेपन के साथ आता था। और उसने मेरी बीवी से कहा कि तुम्हारे मेरे अलावा किसी और बंदे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। सही ठीक जे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब की मामला होया? बीवी नूं कह रहे ने कि जुए 'ਚ हार गया है, वो कहता मैं मेरे घर मीरबाज खान आंदा सी, मेरे ते तशद्दुद करदा सी, इन्हें मेरी बीवी नूं मारिया है। लोग कह रहे ने कि जुए 'ਚ हार गया है, इन्हें तशद्दुद करके मारिया। की कहानी है? ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਦਾ देखा अंदर कमरा बंद सी, बाहर भी बैठे सन की पता अंदर की कर रहे। हाँ जी, कुछ शोर पाए, कोई गल करे तो पता लगता। जे रजाबंदी ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ तो ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਬੇਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਤ ਤਗੜੇ ਹੋਣ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਂਜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਲੰਘ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। और दिन लहंगी कोई नहीं है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि अभी जनाज़ा जो है वो उठाया जा रहा है और चंद मोहल्लेदार मौजूद हैं और जो कि जनाज़ा भी उठाएंगे। जो यहाँ के मोहल्लेदार हैं वो इस जनाजे में मौजूद हैं और अभी जनाज़ा उठाया जा रहा है। और ये देखें जनाज़ा उठा लिया गया उस ख़ातून का, मकतूला का। और बताया ये जा रहा था कि मकतूला को जो है उसके शोहर ने जो है यानी कि वो जुए में हारा है और अपने दोस्त के आगे, और दोस्त के साथ भेजने के लिए उसने अपनी बीवी को कहा कि मेरे दोस्त के साथ तुम चली जाओ। जब वो नहीं गई तो उस पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। जब हमारी बात हुई जो है यानी कि उस शोहर से, तो उसने कहा कि मैंने जो है नहीं कत्ल किया, मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, बल्कि मेरे घर पर जो है ये मीरबाज खान जो है काफ़ी अरसे दराज से मेरे घर पर आता था और ये कोई मंशियात फ़रोश है और ये मंशियात बेचता है और असले के साथ मेरे घर पर आता था, मेरे बच्चों में खौफ व हरास फैलाता था
और मुझ पे भी तशद्दुद करता था, मेरी बीवी पर भी तशद्दुद करता था और रात होते ही मेरी बीवी को ले जाता था। अभी इसके बारे में क्या हकीकत है, जनाजा जो है वो लेके जा चुके हैं और चंद लोग जो हैं जनाजे में शरीक थे जो कि मोहल्लेदार हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि तकरीबन कोई 10 से 12 लोग यहाँ के मोहल्लेदार थे। उन्होंने जनाजे के साथ शिरकत की है। ना तो इस बशीर का कोई रिश्तेदार है, ना कोई बहन, ना भाई, ना कोई और जो है वो यानी कि रिलेटिव है। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये थाना शादरा की हदूद के अंदर पेश आया है, जहाँ पर बताया ये जा रहा था कि शोहर ने जो है अपनी बीवी को जो है जुए में हारा और उसके बाद अपने दोस्त को जो है अपने दोस्त के आगे जब जुए में हार गया तो अपने दोस्त के साथ अपनी बीवी को बेचने के लिए अपनी बीवी से उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त के साथ चले जाओ। जब बीवी ने ये बात नहीं मानी तो शोहर ने तशद्दुद किया और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। लेकिन FIR के मुताबिक ये है कि FIR के अंदर शोहर ये कह रहा है कि मेरे घर पर मीरबाज खान जो है वो अरसा दराज से आता था, मुझ पे तशद्दुद करता था, मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती जो है वो ज़्यादती करता था, जना बिल जबर करता था और उसके बाद मेरी बीवी को घर से ले जाता था, सुबह मेरी बीवी को घर वापस छोड़ता था। लेकिन अभी तक हकीकत क्या है कोई पता नहीं चल रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहल्लेदार मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बेटियाँ जो हैं वो इस वक्त रो रो के उनका बुरा हाल है और वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं। और बच्ची से हमारी बात हुई, बेटी से, और उन्होंने भी यही बताया कि हमारी वालदा को जो है इसने मजबूर किया नशा बेचने पर और मेरी वालदा ने बात नहीं मानी, इस बुनियाद पर जो है उसने मेरी वालदा को कत्ल कर दिया। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन सबक यह है कि अपने घरों में किसी भी गैर महरम अफराद को ना आने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हमने आपके साथ आज शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।